Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture, we will quickly recall the fundamentals of set theory and introduce the notion of a topological space. एक अहम बात जो इस लेक्चर के कंटेंट्स को समझने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि इस लेक्चर में दिखाई गई स्लाइड्स में इटैलिक फॉर्म में लिखे गए वर्ड्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स या मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स के नाम हैं। आपने इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है और ख़ुद से हर कॉन्सेप्ट के लिए एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करनी है। आइए हम सेट की डेफिनेशन को देखते हैं। कलेक्शन और लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। हम सेट्स को कैपिटल लेटर्स ए बी सी एटसेट्रा से डिनोट करते हैं, जबकि सेट्स में मौजूद एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जी एटसेट्रा से डिनोट करते हैं। अगर P एलिमेंट हो सेट A तो हम इसे यूं लिखते हैं और ऐसे पढ़ते हैं P इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A और P बिलोंग्स टू सेट A। इस स्टेटमेंट की नेगेशन को हम यूं लिखते हैं और ऐसे पढ़ते हैं P डज नॉट बिलोंग टू सेट A और P इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A। A set can be specified in two ways. Number one, by listing its elements if possible. For example, A is the set consisting of elements A, E, I, O and U. In the second way, we state properties which characterize the elements in the set. For example, B is the set of elements X such that X is an integer and X is greater than 0. In this form, we read the column as such that and the comma as and. The set B given on the previous slide can also be written as B is the set consisting of elements 1, 2, 3 and so on. Note that -6 does not belong to set B but 3 belongs to set B. The 3 dots are called ellipses and indicates the intentional omission of elements of a set. Now we study notations and definitions of the most important sets of numbers, that is intervals on the real line. If A and B are real numbers and A is smaller than B, then the set open interval from real number A to real number B is denoted and defined as the set consisting of those real numbers which are greater than A but smaller than B. The set closed interval from A to B is denoted and defined as the set consisting of those real numbers which are greater than or equals to A and less than or equals to B. And the sets open closed interval from A to B and closed open interval from A to B are denoted and defined in this way. Equal sets, अगर सेट A का हर एलिमेंट सेट B का एलिमेंट हो और सेट B का हर एलिमेंट सेट A का एलिमेंट हो तो इसे हम यूं लिखते हैं और ऐसे पढ़ते हैं सेट A इज इक्वल टू सेट B। इस स्टेटमेंट की नेगेशन को हम यूं लिखते हैं और ऐसे पढ़ते हैं सेट A इज नॉट इक्वल टू सेट B। सबसेट्स, सुपरसेट्स, अगर सेट A का हर एलिमेंट सेट B का भी एलिमेंट हो तो इसे हम यूं लिखते हैं और यूं भी लिखते हैं और ऐसे पढ़ते हैं A set A is a subset of set B और set B is a superset of set A। हम ऐसे भी पढ़ते हैं set A is contained in set B और set B contains set A। इस स्टेटमेंट की नेगेशन को हम यूं लिखते हैं और ऐसे पढ़ते हैं सेट A is not a subset of set B। इसे हम ऐसे भी पढ़ते हैं सेट A is not contained in set B। और इस स्टेटमेंट की नेगेशन को यूं लिखते हैं और ऐसे पढ़ते हैं सेट B is not a superset of set A, या ऐसे भी पढ़ते हैं सेट B does not contain set A। इक्वल सेट्स को हम यूं भी डिफाइन करते हैं two sets A and B are equal if and only if set A is a subset of set B and set B is a subset of set A। ये important definition है
हमने जब भी दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना होगा तो हम ये प्रूव करेंगे कि वो एक दूसरे के सबसेट्स हैं। अगर सेट ए सेट बी का सबसेट हो लेकिन सेट ए सेट बी के बराबर ना हो तो इसे हम यूं लिखते हैं और ऐसे पढ़ते हैं, सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी और सेट बी कंटेन्स सेट ए प्रॉपरली। नेक्स्ट थ्योरम है, let A, B and C be any sets, then A is a subset of set A. This theorem is this definition. And number 3, if set A is a subset of set B and set B is a subset of set C, then set A is also a subset of set C. अब हम एक इंतहाई अहम टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा सेट जिसका हर एलिमेंट खुद एक सेट हो उसे हम क्लास, कलेक्शन या फैमिली कहते हैं। इस कोर्स में हम वर्ड फैमिली यूज़ करेंगे। फैमिली से मुराद एक सेट होगा जिसका हर एलिमेंट खुद एक सेट होगा। हम फैमिली के लिए नोटेशन स्क्रिप्ट लेटर्स ए, बी और टी एटसेट्रा यूज़ करेंगे। जब भी इस कोर्स में आपको ऐसे स्क्रिप्ट लेटर्स दिखाई दें तो इससे आपने समझ जाना है कि ये एक फैमिली है, मींस कि ये ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स खुद सेट्स हैं। फैमिली चूंकि खुद एक सेट है तो इसके सबसेट्स भी एग्जिस्ट करेंगे। इसके सबसेट्स के लिए वर्ड हम सब फैमिली यूज़ करेंगे। ऐसे ही हम वर्ड सब कलेक्शन और सब क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिखाया गया सेट B एक फैमिली है। नेक्स्ट स्पेस क्या है? ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिस पे कोई मैथमेटिकल स्ट्रक्चर डिफाइन हो जो कि सेट को एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बना दे, तो ऐसे सेट को हम स्पेस बोलते हैं। मसलन वेक्टर स्पेस, मीट्रिक स्पेस और टोपोलॉजिकल स्पेस वगैरह। आइए अब हम बाइनरी ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस या रिलेटिव कंप्लीमेंट की डेफिनेशंस को रिकॉल करते हैं। सेट ए और सेट बी के यूनियन को हम यूं लिखते हैं और ऐसे डिफाइन करते हैं, ए यूनियन बी इज द सेट consisting of elements x such that x belongs to set A or x belongs to set B. सेट A और सेट B के इंटरसेक्शन को हम यूं डिफाइन करते हैं, A intersection B is the set consisting of elements x such that x belongs to A and x belongs to set B. If A intersection B is empty set, then A and B are said to be disjoint or non-intersecting sets. Relative complement or set difference. The relative complement of a set B with respect to a set A or simply the difference of A and B is denoted by A backslash B or A minus B and defined as the set of elements which belong to set A but which do not belong to set B. The complement of a set A is denoted by A power C and defined as the set of elements which do not belong to set A. That is, A complement is equal to U minus A. In other words, A complement is the difference of the universal set U and A. सेटों पर बाइनरी ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस के लिहाज से बाज़ एक्सियम्स हमेशा ट्रू होती हैं जिन्हें हम सेटों में मौजूद लॉज या प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। स्क्रीन पर आपको सेटों के लिए आइडेम्पोटेंट लॉज, एसोसिएटिव लॉज, कम्यूटेटिव लॉज, आइडेंटिटी लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज और डी मॉर्गन लॉज दिखाए गए हैं। नेक्स्ट,
we recall the definition of a function. Let x and y be two non-empty sets. A function f from set x to set y is a mathematical object which associates each element of domain set x with exactly one element of codomain set y. फंक्शन ऐसा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो सेट x के हर एलिमेंट को सेट y के एग्जैक्टली एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करता है।